Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the electrophilic substitution reactions of nitrobenzene. Before discussing the electrophilic substitution reaction of nitrobenzene, we must discuss about the nature of the group that is present on the benzene ring. In case of nitrobenzene, that group is the NO2. So what is the nature of NO2 group? Whether it is a plus R effect group or the minus R, whether it is the minus I effect or the plus I effect group, what is the nature of the NO2 group which is present on the benzene ring in nitrobenzene? So first of all, that is the structure of nitrobenzene, in which NO2 group is present on the nitrobenzene. So what is the structure of that nitro group which is present on the benzene ring? So let's see about the structure. Let again draw that structure step by step. Here is the benzene ring. On that benzene ring, we have NO2. NO2 has these three atoms. That is the one nitrogen atom, other are the oxygen atom. So the nitrogen atom can form a maximum of three covalent bond according to their electronic configuration, which is 1s2, 2s2, and the 2p3. There is no 2d subshell, because in the first shell there is only S subshell. In the second shell there are the two subshell S and P. In the third shell there are the three subshell, that is the S, P, and D. That is the basic rule. So in case of nitrogen there is only S and P, 2S and 2P. The second subshell, no 2D. So in open form, in the 2S orbit, in the 2S subshell, there are the two electrons which are filled according to the Pauli exclusion principle. While in case of the 2p subshell, there are the three orbitals containing one electron each. But it means in the valence shell of the nitrogen atom, there are the three unpaired electrons in the 2p. So it has three unpaired electrons which are used in the formation of covalent bond. Means there are three bond pair electrons, while there are two electrons in paired state. Two electrons in paired state in the 2s. These called the lone pair electrons. So many of times a definition may be asked, that is, what are paired electrons? The two electrons of opposite spin, which are present in the same orbital. Like here in 2s orbital, in the 2s orbital there are the two electrons which are of opposite spin, half arrow in the upward direction, half arrow in the downward direction. These two electrons are in the paired state. These are the lone pair electrons. Means nitrogen atom can form a maximum of three covalent bond due to the presence of three unpaired electron, and it can also form one more coordinate bond by using that lone pair electrons. So nitrogen atom, when the NO2 group forms the bonding with the benzene ring, then how the bonding takes place? The nitrogen atom, by using one unpaired electrons, form the covalent bond with the benzene ring carbon atom. देखो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो चुका है. By using the another two bond pair electrons, देखो one bond pair, second bond pair. The oxygen also have two bond pair electrons because it is a group 16 element. Two covalent bonds are formed. The nitrogen formed two covalent bond with the oxygen atom, one covalent bond with the carbon atom. The benzene ring means all the bond pair electrons consumed. Now the nitrogen atom has only one lone pair electron. By using that lone pair electron, nitrogen atom can form the coordinate bond with the oxygen atom. So that is the structure of NO2 group. In the structure of NO2 group, the nitrogen atom which is attached with a benzene ring carbon atom has multiple bond. So means that is the basic rule. If there is a group which is attached on the benzene ring and that group has the multiple bond, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है और उस ग्रुप के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे, मींस बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली लिंक एटम है, दैट इज द नाइट्रोजन हेयर, अगर उसने फर्दर मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हो तो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है. जैसे NO2 भी यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट वाला ही ग्रुप है. तो ये जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप देखो करता क्या है, तो ये जो NO बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड है, एन और ओ के बीच में बोलो क्या है, डबल बॉन्ड. दीज आर इन कंजुगेशन विद अ बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड. जो बेंजीन रिंग के जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, देखो डबल सिंगल डबल उनके साथ कंजुगेशन में है. तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए एनओ बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट कर लेता है. तो जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इसलिए जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम. तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप.
बाय द माइनस आर इफेक्ट रेजोनेंस के द्वारा। तो माइनस आर इफेक्ट है, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट है ये आपके माइनस आर इफेक्ट के द्वारा। इसने अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर से जब ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे चले गए तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे हो गया कि जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो इस टाइप से आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन और बेंजीन कार्बन के बीच देखो दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पे बोलो जो ये ऑक्सीजन था, जो डबल बॉन्ड था, वहां पे ऑक्सीजन के पास कैसा आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो चुके हैं, इधर शिफ्ट हुए बोलो ये ऑक्सीजन की तरफ, देखो ओ एटॉमिक हुआ नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा, जो बेंजीन रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया है, आपकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। मींस दीज माइनस आर इफेक्ट NO2 group, the minus R effect group like the NO2 group here decreases the electron density from the ortho position as well as from the para position। देखो क्यों, इस नेक्स्ट केस में जो अभी आपकी कार्बोकेटाइन बन गया, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज देखो नेक्स्ट डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, देखो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आगे सिंगल फिर डबल, सो दीज डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए जिसके ऊपर बोलो क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। तो देखो फर्दर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो नेक्स्ट बन गई। इस नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखेंगे, देखो ये डबल बॉन्ड है सच, ये दो इलेक्ट्रॉन से देखो नया बॉन्ड बन गया। अब पैरा पोजीशन वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बची हुई स्ट्रक्चर है सच, ये डबल बॉन्ड एन, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये नेगेटिव चार्ज O के ऊपर। तो आपने क्या देखा, जो माइनस आर इफेक्ट वाले जो ग्रुप था लाइक हियर NO2, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपकी पैरा पोजीशन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर से इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया है, डिक्रीज। वो कौन सी पोजीशन जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई, वो बची है सिर्फ ये मेटा पोजीशन। तो देखो ऊपर वाली पोजीशन बोलो कौन सी होती है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, दीज आर दी ऑर्थो पोजीशन, देखो ये ऑर्थो पोजीशन होती है। नेक्स्ट टू बोलो कौन सी पोजीशन होती है, दीज आर दी मेटा पोजीशन। लास्ट वाली जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द पैरा पोजीशन। तो पॉजिटिव चार्ज बोलो कहां कहां पे अपीयर हुआ है, द पॉजिटिव चार्ज गेट अपीयर्ड ओनली एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट ऑफ द NO2 ग्रुप। अब वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो जो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है उसने क्या किया, देखो हमने लिखा भी है, द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लाइक द NO2 ग्रुप हियर डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। So due to the decrease in that electron density from the ortho and para position, and there is slight excess electron density only at the meta position, so the incoming electrophile will attack only at the meta position, but that the nature of that electrophile must be the stronger one, because there is very low electron density now on the benzene ring। अब ये जो benzene ring है, जो नाइट्रोबेंजीन वाला benzene ring है, it has very low electron density, due to the minus R effect of that NO2 group। इस माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओनली द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक on the benzene ring, and only at the meta position where there appears no positive charge। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं आपके नाइट्रोनियम आयन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, द हेलोनियम आयन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सिर्फ यही अटैक कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकते। और साइमल्टेनियसली ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ओनली एट वन पोजीशन, द इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ओनली एट वन पोजीशन, एंड दैट पोजीशन इज द मेटा पोजीशन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ओनली द मेटा प्रोडक्ट। सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बोलो आपका, सिर्फ मेटा प्रोडक्ट ही यहाँ पे बनेगा, ओनली द मेटा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कोई आपका मेटा प्रोडक्ट ही बनेगा यहाँ पे। तो अगर ये तो हमने देखा कि आपके पास अगर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हो, यहाँ पे NO2 ग्रुप, जैसे कि कौन है आपका यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के ऊपर तो NO2 ग्रुप था, लेकिन अगर ऑपोजिट और आपको बता दें थोड़ा ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए इसके रिवर्स कोई ग्रुप होता, जैसे कौन सा ग्रुप हो जाए आपके, जैसे फिनोल के अंदर OH ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो OH ग्रुप है इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, क्योंकि क्या प्रेजेंट इस पे लॉन पेयर। तो ये सिंपल सी पहचान आइडेंटिफिकेशन आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है कि बेंजीन रिंग पर जो भी ग्रुप हो, अगर उसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जैसे OH में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और प्लस लॉन पेयर हो जाए,
तो वो आपका प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है NO2 में। को बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप प्रेजेंट है जैसे NO2, और जो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है जैसे NO2 में नाइट्रोजन है, अगर उसने फर्दर मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हो तो वो आपका कहलाता है माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप। जैसे एक आधा एग्जांपल और बता दें हम, वन मोर एग्जांपल आपको बता दें, मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर हम लगा दें मान लीजिए CN सीधा लिख दे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर फॉर्म में लिखा हमने, बोलो क्या है। देखो बेंजीन रिंग से अटैच कौन है, कार्बन, कार्बन ने फर्दर क्या बना लिया, देखो मल्टीपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, सो इट इज ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, CN इज ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। अगर मान लीजिए सिमिलरली मैं बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड OH, तो देखो अब कार्बन जो बेंजीन से अटैच है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, उसने फर्दर क्या बना रखे मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो इट इज ऑल्सो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हम ग्रुप लगाते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देखो ऐसे S और ये डबल बॉन्ड O, इधर भी देखो डबल बॉन्ड O और इधर ये सिंगल बॉन्ड OH, देखो SO3H ग्रुप। यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम कौन है, सल्फर, सल्फर ने एक नहीं आपके डबल बॉन्ड दो दो डायरेक्शन में बना रखे, दो दो ऑक्सीजन के साथ, सो इट इज ऑल्सो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप का जो असर है वो एक जैसा रहेगा, इफेक्ट एक जैसा रहेगा जैसे कि हमने NO2 के बारे में बताया। ऑल द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और ग्रुप भी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप आप ले लें। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर हमने लगाया CHO ग्रुप, देखो ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखनी आपको आनी चाहिए, इसलिए देखो इस कार्बन ने भी ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, सो इट इज आल्सो माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जैसे हमने आपको एन नाइट्रोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन भी किया। तो इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थोड़ी बहुत बची वो कहां पे बची, ओनली एट द मेटा पोजीशन। सो द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकते हैं, क्योंकि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर वीक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इसके बेंजीन रिंग के पास खुद के पास ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच गई है, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाए वही इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है बेंजीन रिंग के, इन कम इलेक्ट्रॉनों को छीन सकता है। तो इसलिए हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हो कौन, आपके माइनस आर इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके लगे हुए तो। लेकिन इसके अपोजिट जैसे हम फिनोल के बारे में बता रहे हैं, अगर आपका प्लस आर इफेक्ट ग्रुप लगा होता है, ये क्या करेगा, रिवर्स इसी टाइप से इट विल डोनेट। देखो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है देखो हमने ऐसे डोनेट किए, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम जिसपे लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस की कंडीशन पूरी। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर देखो आगे शिफ्ट, अब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो शिफ्ट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होने से जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो जो बन गई, देखो मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको। तो क्या हुआ बोलो, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग देखो हमने एसएच दिखाया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये H ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्थो पोजीशन पे बोलो कैसा चार्ज आ गया, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ये डबल बॉन्ड के साथ फर्दर आपके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे, देखो आगे देखो ऐसे इस पोजीशन के ऊपर कार्बन की तरफ, और ये पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये फर्दर देखो अगर हम रेजोनेंस इसी टाइप से देखो शो कर दें, तो पैरा पोजीशन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो यहाँ पे बचे बॉन्ड आप एसएस दिखाएंगे, देखो ये डबल बॉन्ड नया बन गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ऊपर जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड एसएस दिखाएंगे, OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पैरा पोजीशन के ऊपर आपके आ गया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा, जो ये आपके OH ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, ये एक प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पे इंक्रीज की इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पे, तो इसलिए अटैक कहां पे करेगा, देखो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इट विल अटैक एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, इसलिए ऑर्थो पे अटैक हुआ, ये पैरा पे अटैक हुआ, इसलिए टू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए यहाँ पे कि नाइट्रोबेंजीन कोई माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो लाइक नाइट्रो ग्रुप, तो आपके एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द ओनली द मेटा प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर आपके पास कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो और कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है तो टू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इस इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैच हो सकता है और पैरा पे भी अटैच हो सकता है, मींस दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं। अब हम देखते हैं अपनी रिएक्शन, बोलो कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन की। ये हम पहले ही याद कर चुके हैं कि जो NO2 ग्रुप है इसका इफेक्ट कैसा है, माइनस आर। तो ये जो माइनस आर वाला जो NO2 ग्रुप है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा बेंजीन रिंग से, मींस बेंजीन रिंग हैज वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लाइक द नाइट्रोनियम आयन, द सल्फर ट्राइऑक्साइड, द क्लोरोनियम मींस हेलोनियम आयन कैन अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन रिंग ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे हम नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे नीचे। अब हम वो रिएक्शन डिस्कस करते हैं जो बेसिक 5 रिएक्शन होती है, बेसिक 5 रिएक्शन होती है आपकी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट alkylation and the acylation reaction. First of all, we will see about the nitration reaction. In the nitration reaction, we use the nitrating mixture, means concentrated HNO3 or concentrated H2SO4. By mixing these two acids, that is the concentrated H2SO4 or the concentrated HNO3, we got a electrophile, that is the nitroneamine. हमें nitroneamine मिलता है, that is an electrophile. It will attack at which position? It will attack at the meta position. So only the meta product will be formed due to the presence of that minus R effect NO2 group. बेंजीन रिंग के ऊपर एक NO2 ग्रुप पहले से अटैच है। अब दोबारा से हम नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रेशन रिएक्शन कर देंगे तो एक और जो NO2 ग्रुप लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? एट द मेटा पोजीशन। देखो मेटा के ऊपर लगा और प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज द मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। बोलो प्रोडक्ट आपका कौन बन गया? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर आप इसको नंबरिंग के बेसिस के ऊपर कहना चाहें तो नंबरिंग 1 2 एंड 3, तो 1 और 3 भी आप कह सकते हैं। देखो ऐसे 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन, आप इसका ये नेम भी लिख सकते हैं। अब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन लिख दें या 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन लिख दें, दोनों ही आपके ठीक माने जाएंगे। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई? नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो ये नाइट्रेशन रिएक्शन चली है, हम आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला दें कि नाइट्रोनियमाइन आपका ये प्रोड्यूस कैसे हुआ था। देखो जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपने देखो ये याद कर ही रखा है वैसे पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दें ताकि आपको ध्यान रहे। सल्फ्यूरिक एसिड on dissociation gives the H positive ion along with the HSO4 नेगेटिव आयन। देखो HSO4 नेगेटिव आयन निकल जाता है। जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड? द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, बेसिक तो आपके पास क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है HNO3 ऑक्सीजन 3 है। देखो 1 2 एंड द 3 एसिड है तो एक तो H जरूर होगा। देखो ये हमने H यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे नीचे। अब ऑक्सीजन ने देखो इसके 2 बॉन्ड हमने पूरे कर दिए। अब ये नाइट्रोजन देखो 3 बॉन्ड बनाता है, पहले कॉन्जुगेशन के द्वारा हम सीख चुके हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर। इस लोन पेयर की हेल्प से इसने क्या बताया, बनाया यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या होगा? देखो ये OH ग्रुप वाली जो ऑक्सीजन है, इट हैज द 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट डोनेट द वन ऑफ द लोन पेयर टू द H पॉजिटिव आयन व्हिच इज लिबरेटेड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब उसका डिसोसिएशन होता है तो वहां से बोलो क्या निकला था? ये H पॉजिटिव आयन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ने जब ये H पॉजिटिव आयन डोनेट किए तो ऑक्सीजन बिकम प्रोटोनेटेड हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इट साइमल्टेनियसली विथड्रॉ था ON बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ON बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये साइमल्टेनियसली अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। और यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या निकला बोलो? यहाँ से देखो एक तो H2O लॉस हो गया, देखो यहाँ से, प्लस में दूसरी जो स्पीसी बनी वो है आपका N, ये डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द नाइट्रोनियम आयन। यही है नाइट्रोनियम आयन जो भी हमने आपको ऊपर बताया था। तो ये था जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, के नाइट्रोनियम आयन जनरेट कैसे होता है। अब ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट होकर अटैक कहाँ पे करेगा? ओनली एट द मेटा पोजीशन। वहां पे आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुके हैं। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन। और क्योंकि नाइट्रोनियम आयन हम आपको फिर से बता दें, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इसी वजह से ये बेंजीन रिंग, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैक कर पाया और ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई आपकी, जो कि नाइट्रेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें आप यूज कौन करते हैं बोलो? आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हैं। बोलो कौन यूज करते हैं आप? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर भी आप भली भांति जानते हैं अच्छे से, और जिसके दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बाय द रिएक्शन इन बिटवीन द 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करने के बाद ही तो प्रोड्यूस होती है SO3, और विच दैट SO3 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये SO3 अब अटैक कहां पे करेगा? उसी टाइम से मेटा पोजीशन के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और मेटा पोजीशन पर कौन लग गया बोलो? आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया। बोलो कौन लग गया? आपका सल्फोनिक एसिड। तो एक ही प्रोडक्ट बना, मेटा प्रोडक्ट ही बनता है हर केस में, हमने आपको पहले ही बता दिया था। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज द मेटा प्रोडक्ट। बोलो वो कौन होगा? वो आपका मेटा प्रोडक्ट ही होगा। अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाए सल्फ्यूरिक एसिड की, देखो उसी टाइप से, देखो जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिसोसिएशन गिव्स द H पॉजिटिव आयन along with the liberation of the negative ion, that is the HSO4 negative ion। और सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर अगर हम आपको बताएं कि क्या होती है, तो आप कुछ ऐसे लिखते हैं
देखो S हो गया, देखो ये S1, ये 2, ये 3 और ये 4 देखो हमने यहाँ पे शो कर दिए। उसके बाद हमने देखो एक H यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन के साथ, एक हमने दूसरी साइड में मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया H। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट, इट इज ए ग्रुप 16 एलिमेंट, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर के। अब हम बॉन्ड बनाते हैं, देखो ऑक्सीजन के साथ देखो डबल बॉन्ड वहां पे, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये 4 बॉन्ड हो चुके हैं 5 और ये 6, तो स्ट्रक्चर बन गई आपके सल्फ्यूरिक एसिड की। बोलो किसकी स्ट्रक्चर बनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा काम होगा यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन देखो OH वाली ऑक्सीजन जिसके पास आपके लोन पेयर है, जैसे कि हमने जब नाइट्रोनियम आयन जनरेट किया था, उस ऑक्सीजन ने बोलो क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन बोलो डोनेट किसको किए, यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया H को। तो ऑक्सीजन क्या करे, ये साथ के साथ जो ऑक्सीजन है सल्फर से मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया यहाँ से, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए, इसीलिए जो सल्फर के ऊपर एक और अटैच है आपका OH ग्रुप, वहां से OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को अट्रैक्ट अपनी तरफ छीन लेता है और सल्फर की तरफ डोनेट कर देता है, तो वहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो क्या निकला यहाँ से, देखो वहां से बोलो कौन निकल गया, वो वाटर लॉस हुआ, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकला। तो ओवरऑल बोलो क्या निकला यहाँ से, जब ये रिएक्शन चली इनके बीच में, देखो ये जब रिएक्शन चली तो ओवरऑल क्या निकला यहाँ से, देखो आपकी जो प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ, एक तो SO3, देखो ये S, ये डबल बॉन्ड था, ये पहले से डबल बॉन्ड और ये एक और डबल बॉन्ड, ये SO3 जनरेट हो गया, प्लस में उधर से वाटर निकला, इधर से H पॉजिटिव। तो आप क्या कह सकते हैं, एक चीज और क्या निकली, H3O पॉजिटिव आप कह सकते हैं। बोलो क्या निकल गया आपका, H3O पॉजिटिव, H2O एक साइड से, H पॉजिटिव एक साइड से, दोनों को मिलाया तो H3O पॉजिटिव कह सकते हैं। H2O प्लस में आपका H पॉजिटिव आयन आपका बन जाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन आपका बन गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ यहाँ पे वो कौन है, SO3। तो इस टाइप से हमने ये जनरेशन ऑफ SO3 को भी एक्सप्लेन किया। जैसे कि पहले हमने एक्सप्लेन किया था नाइट्रोनियम आयन के जनरेशन को, ये था जनरेशन ऑफ SO3 विच इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और जो ये रिएक्शन आपकी चली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। तो आपने देखा कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन भी इजीली हो पाई, उसके बाद सल्फोनेशन रिएक्शन भी आपकी हो गई, और रिएक्शन चली कौन सी पोजीशन पे, दैट इज द मेटा पोजीशन। नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग गया, और सल्फोनेशन रिएक्शन के दौरान मेटा पोजीशन के ऊपर आपके SO3H ग्रुप आपका जाके लग जाता है। और जनरेट कैसे होते हैं वो दोनों स्टेप्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी आपने देख लिया। तो इस टाइप से आपके जनरेशन की स्टेप याद होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आ जाती है, दैट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में कौन होगा, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड, जो AlCl3 हमने लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हेलोनियम आयन देखो जनरेट होता है। अब ये जनरेट ये भी कैसे हुआ, अब देखो आपके पास ये हमने लिया, ये Cl, ये Cl के बीच सिंगल बॉन्ड, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इट इज ए ग्रुप 13 एलिमेंट, देखो Al, ये हमने 3 बॉन्ड्स दिखाए, ग्रुप 13 एलिमेंट है, इसके ऊपर ये Cl, इधर भी Cl, ये भी Cl है। और एल्यूमिनियम के पास होता है एक वैकेंट ऑर्बिटल, बोलो क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज ए ग्रुप 13 एलिमेंट, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो होगा क्या, जो AlCl3 है इट एक्ट एज द लेविस एसिड, ये लेविस एसिड का काम करता है। It is an electron deficient compound. It want to complete their octet. एल्यूमिनियम के चारों तरफ सिर्फ 3 ही बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर 2 more electrons. So it abstract the Cl negative ion from the Cl2. ये Cl2 देखो इसके अंदर से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए गए एल्यूमिनियम को, तो इसलिए जनरेट क्या हुआ, देखो एक तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, प्लस में जो दूसरी स्पीसी बनी वो बोलो कौन बन गई आपकी Al, और एक Cl देखो पहले से लगा हुआ था, देखो ये सेकंड Cl है, देखो ये थर्ड Cl है और ये फोर्थ Cl है। देखो इस टाइप से हम अगर कोऑर्डिनेटिंग इसकी स्ट्रक्चर दिखा दें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर दें, और एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। इकट्ठा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख देते हैं इसको AlCl4 और नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, लेकिन हमें पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज है किस पे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आया अभी ये एल्यूमिनियम के ऊपर है, तो करेक्टली अगर आप इसको शो करेंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऐसे शो कर देंगे, दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द Al के ऊपर है ये। तो इस टाइप से आपने देखा Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन किस टाइप से जनरेट हो जाता है। इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन उतना नहीं जितना कि नाइट्रोनियम आयन था, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इट कैन विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग के ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, और मेटा पोजीशन के ऊपर देखो आपका प्रोडक्ट देखो बनेगा, और ये बन गया मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इज द प्रोडक्ट।
तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन भी हो गई। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच कैन टेक्स प्लेस इन द नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन के अंदर हो सकती है। ये 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बची हुई 2 रिएक्शंस को और भी हम डिस्कस करते हैं अभी। वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो ये हम देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें आप कौन लेते हैं, जहां पे आपने लिया था ये Cl2, जिसमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो गया था। देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बोलो कौन आपका स्लाइट नेगेटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या आ गया था, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और Cl के ऊपर दूसरे Cl पे क्या आ गया था, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मींस देयर occurs the induced polarization in presence of the AlCl3। सिमिलरली जब आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा। देखो जो CH3Cl है ये भी क्या करेगा, देखो AlCl3 जो है Cl को विद इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से लेके चला जाएगा। इट एक्ट एज द हैलोजन कैरियर। हम एक चीज और बता दें, बिकॉज इट टेक्स अवे द हैलोजन एटम with electrons, Cl को with electron ले गया, so it also act as the halogen carrier। जो ये लेविस एसिड जिसे हम कहते हैं, AlCl3 also act as लेविस एसिड, इसे हम लेविस एसिड भी कहते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि इसके पास सिर्फ चारों तरफ 6 ही इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, so it is also an electron deficient compound because it takes away the halogen atom along with the electrons. It also acts as the halogen carrier. It acts as the halogen carrier because it takes away the halogen atom along with their electrons, along with the बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर के साथ ले जाता है। Cl है तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में ले जाएगा, Br है तो Br नेगेटिव की फॉर्म में ले जाता है, तो इसलिए ये कहलाता है हैलोजन कैरियर। तो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, व्हाई द AlCl3 एक्ट एज द हैलोजन कैरियर, व्हाई द AlBr3 भी ले सकते हैं। अगर आप Br2 ब्रोमिनेशन कर रहे होते तो आप Br2 लेते और इधर AlBr3 आप ले लेते, तो व्हाई द AlBr3 एक्ट एज द लेविस एसिड और द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और एक्ट एज द हैलोजन कैरियर इन द हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन और द नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कौन है, बोलो CH3 पॉजिटिव। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, सो इट कैन नॉट अटैक ऑन द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट अटैक, इट कैन नॉट अटैक, इट कैन नॉट अटैक ऑन द it cannot attack on the low electron density, it cannot attack on the low electron density benzene ring, low electron density benzene ring of nitrobenzene। तो इसीलिए ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो उसमें रिएजेंट कौन लेते हैं, आपका कोई भी एसिड हैलाइड, जैसे CH3COCl ले लिया, इसमें AlCl3 तो वही काम करेगा, देखो Cl को तो ले जाएगा, इतना काम तो हो जाता है, आपका प्रोड्यूस भी हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका प्रोड्यूस हो गया, एसाइलियम आयन, देखो ये प्रोड्यूस हुआ आपका एसाइलियम आयन, बोलो कौन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे आपका एसाइलियम आयन। जो ये एसाइलियम आयन यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हुआ है, इस एसाइलियम आयन में कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज आल्सो ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो जैसे हमने उधर लिखा था वही सेम लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे कि दैट एसाइलियम आयन दैट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन नॉट अटैक ऑन द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग of the nitrobenzene, so no Friedel-Crafts acylation reaction will occur। तो इसलिए आपने क्या देखा कि जो नाइट्रोबेंजीन है, उस नाइट्रोबेंजीन के केस के अंदर आपके 3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली। कौन कौन सी? नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई, सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई, आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी हो गई, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं हुई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइलियम आयन बनता है विच इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, और आपके एसाइलियम आयन विच इज आल्सो वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए 2 रिएक्शन नहीं होती। सिमिलरली अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी और दूसरा ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, लाइक हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें, मान लीजिए ये नाइट्रोबेंजीन ना होता रिएक्टेंट और यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड होता, बिल्कुल सेम नेचर होता, यही 3 रिएक्शन आपके बेंजोइक एसिड के केस में भी चलती। आपकी ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग नेचर होता, मींस 3 रिएक्शन कौन सी चलती बेंजोइक एसिड के केस में भी, वही नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एंड नो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, नो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन अकर। सो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। थैंक यू।